Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. In our previous class, we have learnt a lot regarding narrations. Now you have learned all the rules that how to convert direct into indirect speech, removal of quotation marks, using conjunction, change of pronouns, change of tense, and change the time and place expression. This will be done in your next lesson, inshallah. टेंस और टाइम एक्सप्रेशंस को चेंज आप अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे व्हेन यू हैव रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच. अब आपको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट करना भी आना चाहिए एंड इट हैज़ सम डिफरेंट रूल्स. इसका जो है वो SON सन थ्योरी अप्लाई नहीं होती इस पर, बल्कि हम इसमें दूसरा रूल अप्लाई करते हैं एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू टेल यू सून. तो जब हम इन एक्सरसाइजेस को अभी सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साथ साथ कन्वर्जन भी सिखा दूँगी. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सप्लेनिंग सम बेसिक रूल्स अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइजेस which are on page number 50. Here on page number 49 you can see enough explanation about narration, and if you have missed something while listening the lecture, you can read this or watch the video again to clear your concepts. Here on page number 50 you can see the rule has been provided, rule has been given for change of pronouns, and I have already told you, but one thing you can see, and let's see with the help of example, that we have an example here. Sana says to me, I want your copy. And here answer is, when we convert it into indirect speech, we have to change first says to into tells. Sana tells me, we have to remove comma and add conjunction that. Also we have to remove quotation marks. Now we have to apply the rule for the removal of pronoun, for the change of pronouns. For example, if we have here first person pronoun, then we have to change it according to the subject of रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा एज इट इज़ गिवन इन SON थ्योरी. दिस इज़ जस्ट मेड फॉर योर ईजी. ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाई गई है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें. ओके, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हियर वी हैव सब्जेक्ट सना, सो वी हैव टू यूज़ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ सना. सना की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? शी. So we have put she here in place of I. हमने I की जगह क्या put किया? She. Now one more thing I have to tell you, that verbs should agree with the new pronouns of the reported speech. अब अगर हमें verb में अगर कोई change करना होगा according to the pronoun, new pronoun, तो हमें वो according to tense follow करना होगा. जैसा कि आपको पता है कि when we have singular subjects in present simple tense, we have to add S or ES with the verb. तो वही रूल हमें यहाँ फॉलो करना होगा. जब हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया शी, तो अब वांट के साथ हमें एस का एडिशन भी करना होगा. और ये आप हर टेंस के साथ फॉलो करेंगे. जहाँ पर भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज आता है या मेन वर्ब में चेंज आता है, तो वो चेंज आपको करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ शी वॉन्ट्स योर. योर इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. As you know, your is second person possessive adjective. ये possessive adjective है बिकॉज ये इस नाउन को जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कॉपी को. ठीक है, जब हमारे पास सेकंड पर्सन possessive adjective या कोई भी possessive adjective होगा तो हमें उसको उसी प्लेस पे, उसी केस में रखना होगा. अभी मैं आपको एक चार्ट शो करती हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि आपने प्रोनाउंस पहले पढ़े थे, आपको याद है, उसमें हमने possessive adjectives भी पढ़े थे, तो आप उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. Here students, we have all types of pronouns: subjective case, objective case, possessive pronouns, self pronouns, and one more thing, we have possessive adjectives also, जो इससे लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर हमारे पास सब्जेक्टिव केस है तो आई होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई. ठीक है, और अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में कोई पॉजेसिव प्रोनाउन है तो हमें उसे भी अकॉर्डिंग टू द रूल चेंज करना होगा सन थ्योरी को अप्लाई करते हुए. ठीक है, तो जो भी हमारे पास टाइप ऑफ प्रोनाउन आएगी, हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जो आपकी लर्निंग भी है, आपने फर्स्ट टर्म में अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को लर्न किया था, एंड आई होप दैट यू हैव रिमेंबर्ड, यू हैव ऑलरेडी ऑल द नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. Now students, we have your.
हमें योर की जगह करेक्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रूल पुट करना है, और उसके लिए क्या रूल अप्लाई हुआ है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये रूल याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास मी है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो हमें फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे पुट करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का माई। अगर यहाँ प्लूरल होता तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, आर आ जाता, ओ यू आर, आर। ठीक है, नाउ द सेंटेंस बिकम्स सना टेल्स मी दैट शी वांट्स माय कॉपी एंड वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड कोटेशन मार्क्स। नाउ आवर सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट वेल। अभी मैं आपको एक सेंटेंस सॉल्व करके भी दिखाती हूँ, उससे भी आपको बहुत आइडिया होगा। बहुत अटेंटिवली वीडियो देखिएगा ताकि आप क्लियर हो सकें। Now students, we have exercise A on page number 50. Change the following sentences into indirect speech. अब हमें इन गिवन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रूल्स आपको पता हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज शी सेज आई हैव नोटिस्ड योर बिहेवियर। रिपोर्टिंग स्पीच इज शी सेज। तो हमें एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग स्पीच को सेम रखना होता है। हम कोई भी चेंज अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं करते। एक चेंज जो हम करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि से टू को टेल में कन्वर्ट करते हैं इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन आर रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो वो एज इट इज़ आ जाता है। शी सेज, नाउ आई हैव टू रिमूव कॉमा, और क्या करना है मुझे, दैट का एडिशन करना है। कंजंक्शन का एडिशन होता है शी सेज दैट। नाउ the most important thing of the sentence, we have to change the pronoun. ठीक है, we have been given first person pronoun here. हमें कौन सा pronoun दिया हुआ है, first person pronoun दिया हुआ है। और आपको पता है कि first person pronoun अगर हमें दिया गया हो तो हमें उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ वी हैव बीन गिवन हियर शी, ऑलरेडी प्रोनाउन दिया हुआ है, नाउन नहीं दिया हुआ। अगर नाउन दिया गया होता तो हमें उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन गिवन है तो मैंने एज इट इज़ शी नोट कर दिया है। नाउ आपने देखा कि टेंस कौन सा गिवन है, हैव नोटिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट ही, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है आई के साथ हैव यूज़ होता है, लेकिन जब हमारा प्रोनाउन चेंज हुआ शी तो अब कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा, हैज़, नॉट हैव। ओके, शी हैज़ नोटिस्ड हो जाएगा। शी हैव नोटिस्ड तो नहीं करते ना, फिर वो आपका रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा सेंटेंस। शी सेज दैट शी हैज़ नोटिस्ड, सेकेंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव हैज़ बीन गिवन हियर। ठीक है, अब हमारा सेकंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है तो मुझे उसको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है। पुट यहाँ पर मुझे क्या करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही पुट करना है, कोई और टाइप ऑफ प्रोनाउन पुट नहीं करना है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो योर को अगर मैं इसका यहाँ ऑब्जेक्ट देखूँ तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ गिवन ही नहीं है। और एक बात आपको याद रखनी है कि व्हेन वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट इन आवर रिपोर्टिंग स्पीच वी थिंक, वी अज्यूम दैट इट्स मी, यानी कि जो भी स्पीकर है उसने किससे बात की है, मुझसे। सो हियर द लिसनर इज मी, शी सेज टू मी। मैंने अपने जहन में ये रखा कि यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो सेकंड पर्सन को अगर मैं मी से चेंज करूँगी तो क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा, जी, माय। शी हैज़ नोटिस्ड माय बिहेवियर। And now I have removed all the quotation marks, all the commas, and I have added conjunction. I hope that you have understood very well. Is there any need to solve one more sentence? Now the second sentence is, he will say to me, you should apologize for your mistake. Sentence आपने देख लिया. Now we are going to discuss only. Okay, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व सेंटेंस दिखाऊंगी. He will say to me. He will, say to will be changed into tell. He will tell me, comma will be removed, quotation mark will be removed. He will tell me that. Now we have second person pronoun here, you. Second person pronoun will be changed according to the object. So I have to put the pronoun
एज सब्जेक्टिव केस, मुझे सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करना है, सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट यूज़ करूँगी ना, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। वेरी गुड। ही विल टेल मी दैट आई शुड अपोलोजाइज फॉर, नाउ आई हैव बीन गिविंग सेकेंड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है लेकिन सेकेंड पर्सन का है तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर की जगह अब मैं फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करूँगी, माई। आई शुड अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। गॉट इट? एज यू कैन सी नाउ, ही विल टेल मी दैट आई शुड अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। Students, I hope that inshallah now you will be able to solve direct speech, to convert direct speech into indirect speech yourself. और अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप रिमेनिंग एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लेंगे। एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। मूविंग टू एक्सरसाइज बी, इन विच वी आर गोइंग टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है और हमें उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको वन सेंटेंस में बताती हूँ कि हाउ डू वी कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच, एंड इंशाल्लाह देन यू विल बी एबल टू सॉल्व देम ईजीली। नंबर 6 इज़, आई एम गोइंग टू शो यू नंबर 6। मैं आपको जो है वो नंबर 6 के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ कि हाँ हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आई टेल हर दैट आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द क्विज। आपने सेंटेंस देख लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है ना उसको हम मैचिंग रूल कहते हैं। मैचिंग रूल इसलिए क्योंकि हमें क्या करना होता है, सेम प्रोनाउंस को मैच करना होता है। आपने देखा यहाँ पर आई रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि हमें कौन से प्रोनाउंस को मैच करना होता है, हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके और रिपोर्टेड स्पीच के। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको मैच करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई इस आई से मैच हो रहा है और कोई प्रोनाउन यहाँ पर गिवन नहीं है। यस, यहाँ जो रूल है वो क्या है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मैचेस विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच देन वी हैव टू पुट फर्स्ट पर्सन हियर, एंड इफ इट मैचेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच देन वी हैव टू पुट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। क्या रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जाके सब्जेक्ट से मैच करता हो तो हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या पुट कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पुट करते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा हो रिपोर्टिंग स्पीच के तो फिर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन पुट करते हैं। ये चीज़ शायद आपको एक्सप्लेनेशन से इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगी इंशाल्लाह। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट देयर इज़ नो चेंज इन द प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमें फर्स्ट पर्सन पुट करना था एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन, इसलिए यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं देखा और ये तो बहुत ईजीली सॉल्व हो गया। चेंजेस जो हमने यहाँ पर किए हैं वो हमने टेल को से टू में चेंज किया है, कॉमा ऐड किया है और इन्वर्टेड कॉमास भी ऐड किए हैं आफ्टर फुल स्टॉप। आपने देखा कि जब आप लास्ट यानी क्लोज कर रहे होते हैं तो फिर आप आफ्टर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास पुट करते हैं, बिफोर फुल स्टॉप नहीं करते। ठीक है, तो वन मोर सेंटेंस हम चेक करते हैं। नंबर 7 इज़, यू टेल मी दैट आई वॉज लिसनिंग टू हर। व्हाट वी हैव टू डू, यू टेल विल बी चेंज इनटू से टू, you say to me, that will be removed and we have to put comma. After this students, we have to match the same pronouns. सेम प्रोनाउंस किसके मैच करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच के और रिपोर्टिंग स्पीच के। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का आई कहीं मैच होता हुआ नज़र आ रहा है जी, ये रिपोर्टेड स्पीच का आई जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के मी से मैच हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोनाउन है हर रिपोर्टेड स्पीच का हर इस रिपोर्टिंग स्पीच में हमें कहीं भी मैच होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, सो वी हैव टू लीव इट द सेम। नाउ जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सब्जेक्ट से मैच होगा तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पुट करेंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से मैच होगा तो हमें क्या पुट करना होगा, वी हैव टू पुट सेकेंड पर्सन। तो अब हम यहाँ पर कौन सा सब्जेक्टिव केस पुट करने जा रहे हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का, यू। टेंस यहाँ पर है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब पुट करते हैं वो वॉज होता है, बट इफ़ वी हैव यू देन वी हैव टू पुट वर। यू वर लिसनिंग टू हर। आपने देखा कि हर हमने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी प्रोनाउन से मैच नहीं कर रहा था। सो स्टूडेंट्स,
आई होप दैट यू हैव गॉट वेल what we have learned today. हमने आज जो भी सीखा है डायरेक्ट स्पीच के बारे में और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, आई होप दैट इंशाल्लाह you have got and you have understood all the things, and you will solve, you will change indirect speech into indirect speech very easily. So this is your homework, what you have to do at home. So students, this is your homework. You have to complete both the exercises, exercise A and exercise B of lesson number 10, which are given on page number 50 and 51. See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.